Hello students, so continuing with chapter 7 integration exercise 7.2. Let's take some more queries from you. Question number 19 was one of the queries. What it says? It says e की power 2x minus 1 upon e की power 2x plus 1 dx. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है. प्रॉब्लम दे रहा है अपने को डिनोमिनेटर, बट अगर हम e की पावर 2x को t लेट करते हैं तो 2e की पावर 2x आएगा और यहाँ तो -1 भी है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम. सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी कैन डू इज वी शुड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by e की पावर x. देखो, as I have told you earlier, there will be certain questions which will be solved through a particular way. This is one of them. Okay, so that is why I am putting a star in front. So, e की पावर x से डिवाइड किया तो it becomes e की पावर x minus 1 upon e की पावर x. अभी for your convenience I am writing this, and here it is e की पावर x plus 1 upon e की पावर x dx. Okay. 1 upon e की power x is e की power minus x, all divided by e की power x plus e की power minus x dx. अब जरा देखें तो इसको t लेट करके, so definitely we will find कि question solve हो जाएगा. So हम क्या कर रहे हैं, let e की power x plus e की power minus x को t लेट कर देते हैं. So differentiation हो गया e की power x plus e की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 इज इक्वल्स टू dt बाय dx. सो ये पूरा न्यूमरेटर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू dt. सो ये हो गया dt अपॉन t. नाउ फर्दर यू कैन सॉल्व इट. ओके, you can solve further. Now it can be solved. Done. Now there is a certain question which I think I should be solving, and that one is 34th question. So let me take 34th question. I am randomly taking certain questions which I feel that will be difficult, a bit difficult for you to solve. So I am initiating them. Root 10x upon sin x cos x. ठीक है जी. अब भैया रूट तो कैसे भी नहीं आने का, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10x. लिखना नहीं है इसको, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं. 10x dx sin x cos x इंटू अंडर रूट 10x. ठीक है, अब क्या करें, हैव आई मेड इट लार्ज. उसके लिए तरीका है अपने पास, वी हैव द मेथड. क्या करें भैया, जब कुछ समझ में नहीं आए तो जो अंडर रूट में लिख रहा है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो. अंडर रूट होता है, सॉरी इट्स नॉट द अंडर रूट वैल्यू. न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे साइन कॉस. सो इट विल बी साइन एक्स dx अपॉन sin x cos x इंटू cos x हो गया cos स्क्वायर x रूट 10x. ठीक है, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट. 1 अपॉन sec स्क्वायर cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x dx अपॉन रूट 10x. अब प्रॉब्लम क्या दे रहा है, डिनोमिनेटर हमने खुद ही वो क्रिएट किया था, लेकिन नाउ इट कैन बी सॉल्व्ड क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x लिखा हुआ दिख रहा है. दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो. एवरी टाइम व्हेनेवर यू डू दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, देखो dt बाय dx, सो इट बिकम्स dt अपॉन रूट t, मतलब t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करना है. ओके, सो इट इज t की पावर -1/2 dt. नाउ यू कैन सॉल्व इट फर्दर.
you can solve it further also. Correct? So I hope this way you will be able to solve certain questions. Now coming to question number 39. It is dx upon sin square x cos square x. कुछ भी नहीं है इसमें तो. Nothing is being given. So what we should do? न्यूमरेटर में आई होप यू कैन सी 1 लिखा हुआ है. करेक्ट. एंड 1 इज ऑलवेज sin square x plus cos square x. I think in terms of trigonometry we all know this. ठीक है जी. Now what to do? सेपरेट कर दो. sin square x upon sin square x cos square x plus cos square x upon sin square x cos square x dx. solved, and it is actually sec square x plus cosec square x. I think all of you can do the integration and your answer is tan x minus cot x plus c is the answer. Okay, so I hope you will be able to do these kind of questions now. In question number 20 also you can do the same way you have done the 19th question. Okay, so 19th के लिए मैं लिख रहा हूँ. Question 20 also can be done in same way. बस वहाँ e की power 2x है. Correct. Now this is how you end your exercise 7.2. Now there are certain questions which we have to solve. उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के जो भी अपने फॉर्मूलेज हैं क्लास 11 के वो हमें याद रखने पड़ेंगे. सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम इंटीग्रेशंस कर रहे होंगे इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है. नाउ देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आई एम टेकिंग राइट नाउ एज एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल अगर मुझे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू cos x into cos x. cos x को डिलीट करेंगे तो sin x, वो मेरे पास है नहीं. सो व्हेनेवर देयर इज cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, सेम इज फॉर sin. व्हाट यू कैन डू, cos 2x की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं. I think in 11th standard we have studied this formula intensely कि 2 cos square x 1 plus cos 2x होता था. तो cos square x is 1 plus cos 2x divided by 2. Similarly sin square x भी होगा 1 minus cos 2x divided by 2. So 1 by 2 integration of 1 is x and cos 2x का integration sin 2x divided by 2 होगा. I think you remember that. प्लस c. बस इतना ही हार्ड है. ठीक है. सेम फॉर साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है. फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा. करेक्ट. नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 7 का पार्ट 1 पार्ट 2. ये एग्जाम्पल 7 चल रहा है भैया. एग्जाम्पल 7 पार्ट फर्स्ट था ये. इट्स ऑन पेज 305. पार्ट 2 सेज sin 2x into cos 3x. अगर हम sin 2x को t लेट करें तो उसका डिफरेंशिएशन 2 cos 2x अपने पास है cos 3x, और cos 3x का लेट करें तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x से अपने पास है sin 2x. तो गड़बड़ हो गई. अरे गड़बड़ कुछ नहीं हो गई भैया, सब अपने पास है सॉल्यूशन. डोंट वरी. ले जी. फॉर दिस वी मस्ट बी नोइंग 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज. एट दैट टाइम ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू इन क्लास 11 दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वही है ये. ठीक है. 2 sin a cos b. सुना है कि ये sin a प्लस b, प्लस sin a माइनस b होता है.
ठीक है, तो ये हो गया 1/2 साइन 5x माइनस साइन x dx। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन अपने को आता है, माइनस कॉस 5x और 5x के डिफरेंशिएशन 5 से डिवाइड, माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस c। सो इजी, ठीक है ना। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज साइन क्यूब x। इसके लिए अपने पास दो तरीके हैं। पहला काम, आप साइन 3x का फॉर्मूला जानते हैं, आई थिंक यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग। साइन 3x 34 होता था, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से साइन क्यूब x की वैल्यू ले आते हैं, विच इज 3 साइन x माइनस साइन 3x होल डिवाइड बाई 4। दिस इज वन मेथड, ठीक है, वी नो। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद रहना चाहिए था ये 1/4 साइन 3x का माइनस कॉस x माइनस साइन 3x हो जाएगा प्लस कॉस 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। एक काम तो ये हो गया, और द अदर पार्ट इज एज आई हैव टोल्ड यू, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सो हम इसको लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं भैया। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या करें, हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। वाई वी हैव रिटन दिस, भाई कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, लेट कर दिया कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस डी टी। सो ये हो गया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। पहले साइन चेंज कर लीजिए और अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी। So your answer is cos cube x divided by 3 minus cos x plus c, which definitely is not the answer over here. लेकिन अगर आप cos क्यूब को या तो cos 3x के टर्म्स में यहाँ लिख दें, या यहाँ पे cos 3x को cos का फॉर्मूला लिख दें 43 वाला, you will be getting the same answer. So in this way you will be getting the same answer, different answers for the same question. अपने को आंसर सेट करने का है भाई, क्या आंसर सेट करना है ये अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। So in this way you try doing questions of exercise 7.3 now, which are totally based on the formulas which we have studied in class 11. I have told you that time also. So I hope you will be able to solve these questions. Apart from this, अगर क्वेश्चन ऐसा कह दे, मान लो cos 2x, cos 4x, cos 6x, ये कह दिया, क्या करेंगे भैया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट एंगल में आइडेंटिटी लगा दो, एंड देन मल्टीप्लाई बाय cos 4x, फिर वापस से सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। So there are certain more questions which I want to tell you. In the next video I am telling you those questions which might create problem for you in exercise 7.3. For the time being, try doing exercise 7.3 and please remember the formulas which we have studied. So there are almost 24 questions in the exercise. अगर आप 12-13 क्वेश्चन आज ट्राई करते हैं और कल प्रॉब्लम्स पूछते हैं, तो आई विल बी टेलिंग यू दोज प्रॉब्लम्स and then next 12 questions, but I am telling you certain questions which you might face problem, कुछ specific methods हैं, correct? So hope you will revise those formulas of class 11 trigonometry and then try doing these questions. Stay home, stay safe, have a good day. Thank you.